Good morning, class 11th. So we are starting lecture 2 on chapter measures of central tendency. Okay, in lecture 1 we have done calculation of mean in individual series. Now second series is frequency distribution series. So how will you calculate arithmetic mean in frequency distribution series? Okay, now see, here are two methods for calculating arithmetic mean in frequency distribution series. So frequency distribution means in which frequency is also given into the question. So first method, direct method, shortcut method, and third one is step deviation method. Direct method we will use formula x bar is equal to sigma fm upon sigma f. M here is mid value. Okay, mid value. M का formula होता है आपका L1 plus L2 upon 2. Okay, L1 means lower limit and here L2 means जो upper limit है, that is known as L2. Okay, shortcut में same formula a plus sigma fd upon sigma f and x bar में sigma fd dash upon sigma f into c. Okay, so this is the formula. Now we are moving to the question. Calculate mean marks using direct method, shortcut and step deviation method. So question is given here, marks and number of students. So using direct method, first we are finding by using direct method marks, number of students, it is already given, that is f. See, using direct method we also need, f is given here but m you don't have, so m, that is L1 plus L2 upon 2 and here fm है, fm का sum है. Okay, sigma means sum of, तो m आपको ये है, f ये है, तो यानी कि fm भी आपको निकालना पड़ेगा, तभी तो आप fm का सम निकाल सकते हो. ठीक है, सो मार्क्स है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. f is given 20, 24, 40, 36 and 20. ठीक है, नाउ m का फॉर्मूला है L1 प्लस L2 यानी कि दिस प्लस दिस अपॉन 2, तो 0 प्लस 10 अपॉन 2 5, 10 प्लस 20 अपॉन 2 15. देखो इसमें 10 10 का गैप है तो यहाँ पे भी 10 10 का गैप आएगा, तो यानी कि 25, 35 एंड 45. ओके, नाउ fm यानी कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, सो 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100, 24 इंटू 15 is equal to 360, 25 into 4 is equal to 1000, it will be 1260 and this will be 900. So sigma fm is equal to 3620 and sigma f is equal to 140. आपको ये पता कैसे चलेगा कि हमने किसका सम करना है? देखो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी आप वैल्यू निकाल सकते हो, वरना हमें कंफ्यूज रहेंगे कि हमें कौन से मेथड में m निकालना है, किस में d निकालना है. ठीक है ना, तो देखो इसमें हमने क्या करना है, fm निकालना है, क्योंकि वैसे हम लोग क्या करते हैं, fx करते हैं, लेकिन x जब गिवन होता है, लेकिन इसमें क्या है, क्लास इंटरवल में है तो इसमें x तो है नहीं, तो इसलिए हमें इसमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि सिंगल वैल्यू आ जाएगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है ना, तो अब हमें निकालना है मीन. फॉर्मूला लगाओ. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट मीन. सो x bar is denoted, is used to denote arithmetic mean. Okay, x bar is equal to sigma fm upon sigma f, so that is 3620 upon 140. Okay, so it will be 362 divided by 14 is 25.86 is the answer. Is it clear? Now by using shortcut method, आपको सेम क्वेश्चन तीनों मेथड से फाइंड करना है. by using shortcut method, same again marks is given. देखो उसमें था आपके पास d के लिए क्या चाहिए, m माइनस a, तो सब सिंपल आपको m भी चाहिए. f गिवन है आपको, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब आपको चाहिए d इसमें m माइनस a, क्योंकि आपको फॉर्मूला मैंने लिखा है ना पीछे, एंड लास्ट में क्या करना है, fd. ओके, देखो मार्क्स है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. देन मिड वैल्यू कितनी आएगी इसकी, वही सेम 5, 15, 25, 35, 45, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है. 20, 24, 40,
36 एंड लास्ट है 20। अब डी एम माइनस ए, देखो m में से a को माइनस करना है तो a भी हम जो है m में से ही अज्यूम करेंगे, जिसमें से माइनस करते हैं उसी में से अज्यूम करते हैं। उसमें था ना x माइनस ए, पहले वाले जो क्वेश्चंस करे थे हमने इंडिविजुअल, उसमें हमने क्या करा था x d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो a किस में से अज्यूम किया था हमने x में से। अब हम करना है m माइनस ए, तो a को अज्यूम करना है हमने m में से, तो यानी कि मिड का नंबर लेना है 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25 एंड 45 माइनस 25। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका -20 -10 0 10 20। एफ डी में क्या करना है आपको, एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है। 400 माइनस 240 इट विल बी 0, देन 360 एंड 20 इंटू 20 400। ओके, ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट एफ डी इज इक्वल टू 120 and sigma f is equal to 140. Now put formula x bar is equal to sigma a plus sigma fd upon sigma f। ठीक है, तो a कितना था 25 प्लस सिग्मा fd कितना है 120 अपॉन 140। 0 से 0 2 6 जा 2 7 जा, सो जब एलसीएम लोगे 25 इंटू 7, 7 5 are 35, 7 to 14, 15, 16, 17 plus 6। Okay, so 170, 11, 181 अपॉन 6, जब आपने इसको डिवाइड किया तो यू विल गेट 25.86। देखो हम कोई सा भी मेथड यूज़ करते हैं लेकिन आंसर हमारा सेम आता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज शॉर्टकट मेथड। अब आपको निकालना है स्टेप डेविएशन। देखो स्टेप डेविएशन में भी हमें सिंपल यही करना होता है, लेकिन उसमें क्या करना होता है, डी के बाद हमें डी डैश निकालना है, फिर एफ डी डैश करना है ना। तो डी डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हम डी निकालते हैं एम माइनस ए, उसको डिवाइड कर देते हैं सी, सी यानी कि कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर यानी कि इन दोनों के बीच का गैप। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। सी, मार्क्स इज गिवन, m निकालना है, m के बाद f निकालना है, f के बाद आपको d निकालना है यानी कि m माइनस ए, उसके बाद हमें निकालना है d डैश यानी कि m माइनस ए अपॉन सी यानी कि d अपॉन सी, और लास्ट में निकालना है हमने एफ डी डैश। ओके, सीरियल वाइज करेंगे इसको। नाउ मार्क्स गिवन है आपको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। m गिवन है आपको, सॉरी m आपने निकाला था ना, 5, 15, 25, 35 एंड 45। अब गिवन थे आपको 20, 24, 40, 36 एंड 20। d निकालने के लिए m माइनस ए यानी कि ये a है, तो 5 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 10 0 20 सॉरी 10 और 20। डी डैश निकालने के लिए माइनस ए अपॉन सी, इसको हमने करना है सी से डिवाइड, यानी कि सी मतलब कॉमन फैक्टर कितना है इसमें 10 10 का ये सब में, तो ये कितना हो जाएगा -2 -1 0 1 2, यानी कि -20 को 10 से डिवाइड किया -2। ठीक है, एफ डी डैश निकालने के लिए एफ को और डी डैश को मल्टीप्लाई करना है, इट विल बी -40 माइनस माइनस सॉरी प्लस। ओके, देन एफ तो माइनस प्लस का और ये माइनस का, तो ये माइनस रहेगा, यस। देन इट विल बी -24 0 36 एंड 40। देन सिग्मा एफ इज इक्वल टू सेम 140, और एफ डी डैश कितना हो जाएगा आपको 36 और 40 76, और ये हो जाएगा 64, तो इसमें से माइनस करोगे तो सिग्मा एफ डी डैश कितना हो गया 12। ओके, नाउ पुट फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ए कितना है आपके पास 25 प्लस 12 अपॉन 140 इंटू सी 10, ये कैंसिल हो गया, तो वही आपके पास दोबारा से वही इक्वेशन आ गया, 2 6 जा 2 7 जा, सो 25 प्लस 6 अपॉन 7। ठीक है, जो हमने अभी पीछे किया था, 7 5 जा 35, 7 to 14 15 16 17 प्लस 6 181 अपॉन 7, दैट इज 25.86 इज द आंसर। इज इट क्लियर? तीनों मेथड आपको मैंने सेम क्वेश्चन के तीनों मेथड बता दिए। ठीक है, ये था हमारा अर्थमेटिक मीन इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ओके, नाउ इसमें आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें मिड वैल्यू दे रखी होगी, आपको
मीन मार्क्स निकालना है, ठीक है ना, तो मिड वैल्यू दे रखी हो कि m दे रखा होगा तो आपको उसमें कुछ नहीं करने की जरूरत ही नहीं है। अगर डायरेक्ट आपको अगर मार्क्स दे रखे तो आपको m निकालना पड़ रहा। अगर आपको डायरेक्ट m दे रखा है, आपको सिंपल क्वेश्चन करना है, तो आपको तो पता है FM करना होता है। हमें हर जगह पे m पढ़ रहा है, मैं इनका तो कोई रोल ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो उसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना, डायरेक्ट FM सिग्मा FM इंटू f अपॉन f, ठीक है, तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन आते हैं हमारे, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, करेक्टेड अर्थमेटिक मीन, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे सपोज मैं आपको कह रही हूँ, ये है इसमें कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन करेक्टेड, कौन से वाले हैं ये, करेक्टेड अर्थमेटिक मीन, ओके। इसमें फॉर्मूला लगता है हमारा x बार इज इक्वल टू सिग्मा x रॉन्ग प्लस करेक्ट वैल्यू, पहले याद रखना हमेशा करेक्ट होती है, उसके बाद इनकरेक्ट होती है, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय n, ओके। ये हमारा फॉर्मूला होता है करेक्टेड अर्थमेटिक मीन का। अब जैसे सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ, देखो इसमें मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स, मैं कह रही हूँ मीन मार्क्स यानी कि एवरेज है ना, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स, कितना है हमारे पास 40, ओके। लेटर ऑन, बाद में मैंने देखा, लेटर ऑन इट इज़ फाउंड, हमने क्या देखा कि इट इज़ फाउंड दैट वन वैल्यू was rate as 83 instead of 53, मतलब 53 के बदले हमने एक कुछ वैल्यू देख ली थी 83, ठीक है। अब आपको करेक्टेड मीन निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, x बार सिग्मा x अपॉन ये होता है, तो सिग्मा x, देखो x बार आपको गिवन है, मीन गिवन है आपको 40, n गिवन है आपको कितना है, ऑब्टेन बाय 100, तो n हो गया 100, रॉन्ग वैल्यू कितनी है इसमें 83 करा इंस्टेड ऑफ 53, रॉन्ग वैल्यू 83 और करेक्ट वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 53, ठीक है। नाउ पुट द फॉर्मूला, देखो x बार निकालने के लिए क्या करते हैं, सिग्मा, ये नहीं हमें गिवन है, ये चीज़ें सब गिवन है लेकिन हमें ये नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, x बार सिग्मा x अपॉन क्या होता है n, तो सिग्मा x बार तो आपको पता है 40 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वी डोंट नो अपॉन n कितना है 100, तो सिग्मा एक्स निकल गया 40 इंटू 100 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो इट विल बी 4000। नाउ पुट फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स रॉन्ग, सिग्मा एक्स रॉन्ग कितना है, ये रॉन्ग वाला निकला अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, तो ये कितना आया 4000 प्लस करेक्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास 53 माइनस इनकरेक्ट कितनी है 83 और अपॉन में 100, ओके। नाउ ये हमारा करेक्टेड निकल रहा है, ठीक है, करेक्टेड अर्थमेटिक मीन है, क्योंकि आपको हो गया x बार तो हमें गिवन है लेकिन ये हमारा रॉन्ग वाला गिवन था, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4000 प्लस माइनस, माइनस का 83 में से इसको माइनस करोगे ये हो जाएगा -30, ओके, अपॉन 100, तो ये हो गया 3970 अपॉन 100, कैंसिल, सो 39.7 इज माई आंसर, ओके। दिस इज द situation of finding corrected arithmetic mean, okay। now see next question आते हैं आपके missing frequency, okay। देखो next आता है हमारा finding missing value अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे करोगे, अगर सिंपल आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ एक कि मीन इफ मीन ऑफ 5 सीरीज, मीन ऑफ 5 सीरीज आपको दे रखा 30 और 4 वैल्यूज गिवन है आपके पास, 4 वैल्यूज आर 10, 15, 30 एंड 35, आपको निकालना है 5th वैल्यू, 4 वैल्यू गिवन है लेकिन 5 थी ना टोटल, तो एक निकालनी है, फाइंड दी 5th वैल्यू, तो आप कैसे निकालोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस मैथ्स में भी करे हैं, ठीक है। हमें नहीं पता 5th वैल्यू, लेट 5th वैल्यू भी x ले लो, तो जब हमें अर्थमेटिक मीन निकालना होता है, x बार निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, यानी कि 10 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 35 और 5th क्या है x अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि 5, x बार आपको गिवन है 30 इज इक्वल टू, इनको प्लस करो, 35 प्लस 15 50, 60 70 80 90
90 प्लस एक्स अपॉन 5 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 3 ज़ा 15 150 इज इक्वल टू 90 प्लस एक्स. सो एक्स कितना हो गया 150 माइनस 90 0 6. सो देयरफॉर फिफ्थ वैल्यू इज 60. इज इट क्लियर? ओके. नाउ आपके इसमें वेटेड अर्थमेटिक मीन भी है तो वो भी सिंपल होते हैं, बस उसमें फॉर्मूला चेंज होता है कि सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा. इसका फॉर्मूला लिख लो, ठीक है ना. वेटेड अर्थमेटिक मीन क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं. वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार डब्ल्यू. जब वेटेड होता है तो डब्ल्यू भी रखते हैं. सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. इस क्वेश्चन में आपको डब्ल्यू भी गिवन होगा, एक्स भी गिवन होगा, तो आपने क्या करना है डब्ल्यू एक्स का एक कॉलम और बनेगा और सिग्मा डब्ल्यू. ओके, तो ये था हमारा सिंपल वाले क्वेश्चन. ओके, नाउ इसमें हमारे एक और क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी रहती. ठीक है, अब एक क्वेश्चन आएगा फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंडिंग मिसिंग फ्रीक्वेंसी. जब हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है, सो हाउ विल यू कैलकुलेट. ओके, नाउ सी वेजेस आपको गिवन है रुपीज़ में, नंबर ऑफ वर्कर्स. इसमें जब भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना होता है सिंपल वाला फॉर्मूला लगाओ. ये तो देखो वेजेस इसमें आप पहले हम देखेंगे अगर एक्स में होती डायरेक्ट इंडिविजुअल में तो हम डायरेक्ट करते हैं सिग्मा एफ एक्स वाला. लेकिन अगर आपको क्लास इंटरवल में गिवन है यानी कि 10 to 20 20 to 30 तो यानी कि आपको एम निकालना पड़ता है ना इसमें, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू एक वैल्यू गिवन नहीं है. 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 70 to 80 और नंबर ऑफ पर्सनस यानी कि एफ. ये आपके पास गिवन है 5 3 4. इट इज़ नॉट गिवन 2 6 30. तो हम इसको क्या ले लेते हैं यहाँ पे एक्स. ओके, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ता है इसमें एम और लास्ट में क्या करते हैं हम लोग एफ एम. ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ना इसमें एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ एम. ओके, एम निकालने के लिए दिस प्लस दिस अपॉन 2, तो दैट इट विल बी एम कैसे निकलेगा यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 2 15. 10 10 का गैप है तो इसमें भी 10 10 का गैप. 35 45 55 65 एंड 75. एफ एम निकालने के लिए एफ इंटू दिस 5 इंटू 15 75 75 140. देखो 45 यहाँ पे कोई नंबर नहीं है यानी कि 45 इंटू एक्स 45 एक्स 110 390 एंड 975. ओके, तो देखो जब हम इसका सम करेंगे तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये वाली नंबर इसमें ऐड नहीं होगा, इसको हम अलग से लिखेंगे क्योंकि ये अनलाइक है. ठीक है ना, बाकी नंबर्स को प्लस करो 33 प्लस इसको हम 33 प्लस एक्स लिखेंगे. ऐसे इसमें करेंगे, ये वाले नंबर के साथ एक्स आ रहा है तो इसको हम प्लस 45 एक्स अलग लिखेंगे और बाकी नंबर्स को हम प्लस करेंगे. तो सिग्मा एफ एम कितना हो रहा है आपके पास 1765. ठीक है, अब वैल्यू पुट करो. देखो एक्स बार इसमें गिवन था, इस वाले क्वेश्चंस में हमें मीन दिया रहता है. मीन हमें गिवन था इस क्वेश्चन में 52. तो 52 इज इक्वल टू 1765 प्लस 45 एक्स अपॉन सिग्मा एफ कितना है 33 प्लस एक्स बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 52 को 33 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1765 प्लस 45 एक्स. अब इसको सॉल्व करो. देखो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 52 इंटू 33 इज इक्वल टू 1716 प्लस 52 इंटू एक्स इज इक्वल टू 52 एक्स इज इक्वल टू 1765 प्लस 45 एक्स. लाइक टर्म्स सॉल्व करो. 52 एक्स माइनस 45 एक्स इज इक्वल टू 1765 माइनस 1716. 52 में से 45 माइनस करोगे देन यू विल गेट 12 माइनस 5 7. 7x इज इक्वल टू yes 49. So x is equal to 49 upon 7. 7 sevens are 49. So therefore missing frequency is 7. This is my answer. Okay, so this is the concept of finding missing frequency if arithmetic is mean is already given in the question. Okay, now these types of questions are finished now. मतलब कंसेप्ट ऑफ मीन का आपका क्लियर हो गया. इसके बाद हम लोग करेंगे मीडियन एंड मोड. वो भी बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं. सो ये क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लेना और कुछ क्वेश्चंस में होमवर्क ले दूंगी. ओके, और आपको पता है कि जो हमारे चैप्टर आ रहा है वो यही आ रहा है, मीन मीडियन एंड मोड के क्वेश्चंस आएंगे आपके यूनिट 2 में. ठीक है,
और उस चैप्टर से आएगा प्रोडक्शन फंक्शन, उसमें भी न्यूमेरिकल है, टीपी, एपी, एमपी, है ना, रिलेशनशिप है, ये चीज़ें आप मतलब एक एक ही चैप्टर आ रहा है तो इसको तो अच्छे से कर लेना, लेकिन स्टैटिस्टिक्स से आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे. ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास.